get you a breaking update of what we are learning. And this is a slapgate storm that has now been reported in Telangana, where a BJP MP seems to be mired in a controversy, and the BJP MP seems to be slapping an estate agent. Now, this is the BJP MP that we are talking about, Etla Rajender, who was seen slapping a real estate agent after allegedly saying that he has occupied lands of the poor people. And after Etla slapped the real estate agent, his followers attacked the agent as well. And what is being said that the situation quickly went out of control, where the police had to rush to the spot. Let's go across to Somit now. If you can tell us about this slapgate controversy that involves BJP MP, what exactly happened and how the situation was brought under control? Well, it has happened just a while ago, and we can clearly see in the visuals we are putting out for our viewers. Actually, this, Malkajgiri MP, this happened in the Medchal district. So he's the MP there, and Malkajgiri MP, Etla Rajender, is also a very big leader of the Telangana state, we can say that. And actually he was informed by the local BJP workers and also local poor people that some agents, they are trying to grab the land owned by the locals and also local poor people. So basically, immediately after he received the information, he arrived at the spot. We can clearly see he walking there with tens of his followers, and this agent was actually caught by one of the locals, and then later other locals arrived there, and he was in their custody for a while, and later MP arrived there, and Etla Rajender can be seen slapping that agent, because he was seen angry after there were allegations that he has occupied lands of the poor people, and immediately after that his followers were seen attacking him after I'm told BJP that Mr. has slapped them. Is also with us on the phone line. Can you hear me, Mr. Rajender? Yeah. Can you tell us exactly what happened that made you so upset? आप इतने नाराज क्यों हो गए कि ये जो घटना है ये सामने आ रही है? आपने थप्पड़ मारा एक रियल एस्टेट एजेंट को, आखिरकार क्यों? वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं है, वो गुंडा है। प्रजा के ऊपर 1 महीने से जो हमला कर रहा है यहाँ पे, खूब पी के आवाम के अंदर दो बलात्कार करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं जाके पूछे तो वो समाधान दिया था। हेलो जी बोलिए। वो समाधान में मेरे को थोड़ा एंग्री आ गया था। एक्चुअली 1 महीने से यहाँ पे ये गुंडा लोग रह रहे। बहुत बार जाके कंप्लेंट करे तो भी कंप्लेंट नहीं लिया था, लिए तो भी एक्शन नहीं हुआ था। ये इधर 1985 में जो गरीब लोग यहाँ पे जो जमीन लिया था घर का, वो लैंड माफिया आके उनको वो ऑक्युपाई करके पूरा गुंडा को रख के वहाँ पे हमला हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ का MP हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो क्या लोग आपके पास आए थे कंप्लेंट लेकर कि उन्हें परेशान किया जा रहा है? ये कल सुबह 200 आदमी मेरे को आके दरखास्त दिया था। मैंने CP राचकोंडा से बात किया था, मैंने कलेक्टर मेडचल से भी बात किया था। मैं फील्ड पे कल आ रहा हूँ। इधर आपका रेवेन्यू अगर एम्प्लॉइज है तो भिजाओ बोल के भी बोला था। मैं 6 महीने से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं MP बनने के बाद मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा न्यूली एक्सपेंडेड एरिया रहता है। तो हैदराबाद के अंदर ये नया टाउनशिप्स, नया वो फ्लैट्स इधर ही आता है। वो लैंड माफिया का हमला ज्यादा हो गया, तो पुलिस वाले वो और गवर्नमेंट और रेवेन्यू एम्प्लॉइज। लेकिन राजेंद्र जी, आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? क्या आप कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते थे? कंप्लेंट पुलिस के पास लेकर नहीं जा सकते? ये लोग आके ये जो सिविलियन के ऊपर जो हमला कर रहा है, वहाँ पे खूब पी के रह रहा है। वहाँ पे कम से कम जाने के बाद भी नहीं जा रहे लोग। क्या करता रहे बोल के बोल रहा, अरे आप लोग क्या करता रहे बोल के बोल रहा। गुस्सा आता ना हमारा पुलिस वाले पर नहीं पकड़े तो नहीं। बट आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है राजेंद्र जी, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या आपको शोभा देता है कि आप अपना हाथ उठाए? 100% शोभा देता है। जिस जगह ये पुलिस फेल होता है, जिस जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो फेल होता है, जिस जगह गरीब लोगों को न्याय करने के लिए व्यवस्था फेल होता है, जब हमारा जैसा लोग ऐसा करना जरूरी है। तो आपको लगता है कि थप्पड़ मारने से आदमी सुधर जाएगा? 100%। आप उसके बाद आगे क्या करेंगे अगर कंप्लेंट्स जारी रहेंगी तो? ये आप एक मानना चाहिए, मेरा जैसा 25 ईयर्स से मैं MLA मंत्री कर चुका हूँ।
मेरे जैसा आदमी को इतना गुस्सा है बोलते व्यवस्था कितना गरीब लोगों को कितना अपमान कर रहा है, गरीब लोगों को कितना तकलीफ दे रहा है, मानना ना। आप ऐसा समझो। लेकिन राजेंद्र जी, आप लॉ मेकर है, आप अपनी पोजीशन को भी तो समझिए। आप लॉ मेकर है, आप लॉ ब्रेकर कैसे बन सकते हैं? मैं लॉ मेकर हूँ। जिस व्यवस्था हमारा गरीब लोगों को वो सहायता नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, जब हमारा जैसा एमपी लोग उन लोगों का सहायता के लिए जाता है, समझ में आया? तो आपको लगता है थप्पड़ मारने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया, उसके बाद क्या होगा? 100% निकलता है। इसका गरिमा स्टेट गवर्नमेंट देखना पड़ेगा, इसका गरिमा कलेक्टर देखना पड़ेगा, इसका गरिमा पुलिस देखना पड़ेगा। It is not the insult of mine, it is the insult of the system. So you are justifying the slap. You are justifying. Yes, 100%. Yes, this is justified. तो वहां पे पुलिस को भी तो आना पड़ा था सिचुएशन को कंट्रोल में करने आया के लिए। पुलिस वाले, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस वाले से। क्या है, 1 महीने से इतने गुंडा लोग यहाँ आके खूब पी के प्रजा के ऊपर हमला करने के बाद भी, ये लोग पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट देने के बाद भी आप लोग क्या कर रहे बोल के मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्हें कानून के हवाले क्यों नहीं किया? अगर इतनी कंप्लेंट्स आई थी आपके पास, तो कानून के हवाले करना चाहिए था। मैडम आप देखो, मैं कल कलेक्टर को फोन किया था, मैं कल सीपी राचकोंडा को फोन किया था, मैं आरूम बोल के इन्फॉर्मेशन दिया था। ये कॉलोनी वाला पूरा आके एक टेंट डालने का कोशिश किए थे। रात 10 बजे गुंडा लोग आके घर जाके ये टेंट नहीं डालना, एमपी को इधर नहीं बुलाना बोल के हमला कर, तो क्या करते? इज इट फेयर? इज इट द सिस्टम? क्या सिस्टम के खिलाफ अगर आपको आवाज उठानी है सर, तो आवाज उठाइए ना, हाथ क्या उठाते हैं? अगर उसी के ऊपर तो फिर सवाल उठाया जाएगा। कभी You are justifying the slap. I am a human being, madam. You don't know what is the field. You don't know यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखे तो मालूम होता। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। That is the BJP MP there. He seems to be justifying his move when it comes to slapping what is being called as a real estate agent, saying that there were many complaints that the people had come across to him and wanted him to take action. Instead of approaching the police or taking legal route, the BJP MP took the matters in his own hands, literally. Thank you very much, Somit, for joining us here on the broadcast as well. We head into a short break.